Hi everyone. So in this video I will be discussing at code beginner contest 420. So in this contest I was able to solve till the G. Apart from F I was able to solve all the problems. So we will be discussing from the back. So let's start with the G problem first. So this is a compared to D, this is a bit easier problem and on the math side. So let's look at this. So we are given an integer x and we need to find all the integers n such that n square plus n plus x is a perfect square. Okay, so the ranges for x is 1e14 and minus 1e14. So this gives a hint that we should do something in root of x. So if we are able to do in root of x, so it would be looking like 1e7 or 2e7, which is acceptable solution. तो इसमें ऐसे था कि अगर x let's say n square plus n plus x I have an image we can show from image only. So if we are given that n square plus n plus x the perfect square, which means that n I can represent a perfect square as a name z square. So n square plus n plus x is equals to z square. So let's so for any number z, I can write it as in form of n plus y, where n is same as this. So any number can be written in form n plus y, where n is n square plus n plus x y line. So so if we write z is n plus y, so this becomes n square plus n plus x is equals to n plus y ka whole square, replacing z as n plus y. So this becomes n square plus n plus x should be equals to n square plus y square plus 2ny, opening this. So what we get cancelling n square out, so we get x minus y square is equals to 2y times n. So we need to, as we need to find all the possible n, so we will separate out the n. So separating out n means n is equals to x minus y square upon 2y minus 1. So as we need n as an integer, so which means numerator should be the numerator and denominator should divide each other. Numerator should divide the denominator. So I'm now see we get two things here. So x is fixed. I can write it as x minus y square upon 2y minus 1. We got this. These are all possible n's. So in this, what all are fixed? X is fixed only, and we have a one variable which is y. So we can iterate over all possible values of y, but we don't need to iterate from 1e14 to 1e14. We just need to iterate to 1 minus 1e7 to 1e7, or maybe minus root x to root x. Why? Because you see that n square plus n plus x is equals to z square, or we wrote it as n square plus n plus x is equals to n plus y square. If we, so this if we make it as we need to restrict to limit to x. So n square plus n plus x, I can write this, n square plus n plus x is equals to n plus y ka square. So we need to prove that we don't need to iterate to larger values, we need to iterate to only the root x values, because another equation was here. Hmm, x minus y square because okay, so this if we increase this much, if we make it to, let's say, to go to x square, so this would become n plus x ka whole square. This would become n plus n square plus x square plus 2nx. So this would be larger than this. So we have no point on iterating to this. So we need to limit y till root x only. If we limit y to root x, so this would become something like n square plus the largest value would become like n square plus x square plus 2n root x, which is limited, which is small, which is greater than this. So we can prove that going till this, not x square, this should be x. So going till this value, going till root x will find my all my solutions. So what we have got is okay, x minus y ka whole square upon 2y minus 1 should be divisible, should be a perfect integer, should be an integer, and this would mean that we have found all the possible values of n. So again repeating, how did we came to this? So
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एक्स अगर परफेक्ट इंटीजर है तो उसको हम z के फॉर्म में लिख सकते हैं, और z इज इक्वल्स टू एन प्लस वाई। अब एन प्लस मतलब कोई भी नंबर को एन प्लस वाई के फॉर्म में लिख ही सकता हूँ, कोई भी नंबर को वाई, अगर एन कोई पॉजिटिव नंबर भी है या कुछ भी हो, कोई भी नंबर को कोई भी दो नंबर के सम में तो लिख ही सकता हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू एन प्लस वाई, और इसको अगर ओपन करेंगे और एन को सेपरेट करेंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, इस इधर से हम बोल सकते हैं कि हमें x तक जाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ रूट x तक जाने की जरूरत है। y को हम रूट x तक लिमिट करेंगे तब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद हम एन स्क्वायर प्लस एन प्लस एक्स से बहुत बड़ी वैल्यू पे जा रहे होंगे। तो अगर हम रूट एक्स तक लिमिट करते हैं तो हम क्या आइट्रेट करेंगे, y को आइट्रेट करवाएंगे रूट एक्स से रूट एक्स तक, माइनस रूट एक्स से प्लस रूट एक्स तक, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और ये एक परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, तो वो एक पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन होगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं, कोड कोड तो इसका सिंपल था। सो एक थी कि वैल्यूज रिपीट हो रही थी, तो वेक्टर की जगह हम सेट में रख रहे हैं और बाद में उनको सेट का साइज आउटपुट करा देंगे। तो क्या करा है कि मैंने y रखा है, y को मैंने -1, मैंने रूट एक्स नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली -1 से +1 तक आइटरेट किया है, क्योंकि टेस्ट केसेस नहीं थे और दिस इज अलाउड। तो -1 से 1 में आइटरेट कराया, तो डिनोमिनेटर क्या बनता है, x माइनस वाई स्क्वायर था, तो x माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है 2y-1, और ये डिविजिबल होना चाहिए, अगर डिविजिबल है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, दिस इज अ पॉसिबल n। तो इसको मैंने सेट में डाल दिया, उसको प्रिंट करा दिया। तो दिस इज हाउ कि जी प्रॉब्लम। अब जी के बाद था एफ नहीं हुआ, एफ मुश्किल था, ई पे आते हैं। तो ई में क्या है कि एक ग्राफ दे रखा है, पहले तो यू हैव अनडायरेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टिसेस एंड जीरो एजेस। पहले सिर्फ एन एजेस है, एन एजेस के एन वर्टिसेस है, पहले पहले एन वर्टिसेस है, और तो ऐसे हम उनको सेपरेट वर्टिसेस मान सकते हैं। और अब क्या करें कि और सारे वर्टिसेस पहले वाइट है, ये बोला है कि वाइट है, और वर्टिसेस आर इनिशियली वाइट। अब क्वेरीज है तो तीन तरीके की क्वेरीज है। क्वेरी वन बोलती है कि हमें यू से वी के बीच में एक एज कनेक्ट कर देनी है, तो अगर इसने 1 2 बोला तो हमें 1 2 के बीच में एक एज कनेक्ट कर देनी है। और इसमें क्या है, क्वेरी टू बोलती है सबका कलर पहले व्हाइट था, अगर क्वेरी टू बोलती है कि थर्ड का कलर ब्लैक कर दो तो ब्लैक कर दो। अगर वापस क्वेरी थ्री थ्री पे क्वेरी टाइप टू की क्वेरी आती है तो इसको वापस व्हाइट कर दो, मतलब इसका कलर टॉगल करते रहना, व्हाइट से ब्लैक, ब्लैक से व्हाइट, क्वेरी 2 में। और क्वेरी 3 बोलती है कि हाँ, दिस इज मेन पार्ट की डिटरमाइन वेदर अ ब्लैक वर्टेक्स कैन बी रीच वर्टेक्स बी बाय ट्रेवर्सिंग जीरो और मोर एजेस। ये बोलना चाहता है कि वर्ट अगर मैंने कोई वर्टेक्स वी बोली, कि मैंने वी, तो हमें ऐसा कोई बताना है कि ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है कि जिससे मैं कोई ब्लैक वर्टेक्स, मुझे बताना नहीं है कहाँ पे पहुंच सकता हूँ, बस मुझे बताना है यस या नो कि मैं कोई ब्लैक वर्टेक्स पे पहुंच सकता हूँ या नहीं। मतलब अगर इससे कहीं कोई कोई एजेस कनेक्टेड होगी, मुझे बस कोई भी ऐसा वर्टेक्स बता देना है जिससे मैं वो ब्लैक हो और मैं उस पर पहुंच सकता हूँ। तो तीन तरीके की क्वेरी ये थी। तो आप हर क्वेरी का आंसर, बस इस वाली क्वेरी का आंसर होगा, और इनमें तो बस चेंजेस करने हैं या जो भी करना है। तो कंस्ट्रेंट भी ज्यादा है, 2e5 65, तो एन लॉग एन, इनमें कुछ करना होगा। तो बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एड अनडायरेक्टेड एज ऐड कर दो यू से वी के बीच में, तो वो हिंट देते कि डीएसयू तो होगा। तो इसकी वजह से मैं पक्का बोल सकता हूँ डीएसयू तो होगा, क्योंकि मुझे बताना है कि इन दोनों को कनेक्ट कर देना है, और ये भी कुछ बता रहा है कि पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में पाथ कब एग्जिस्ट करता है, जब वो एक ही कंपोनेंट में हो, और वो कंपोनेंट वाली चीज डीएसयू बोल बताता है। तो डीएसयू का हिंट ऐसे आता है कि जब भी कोई एजेस हमें कनेक्ट, मतलब पहले एज नहीं थी, अब एज डालनी है, तो वो डीएसयू का हिंट देता है। और दूसरा कि हमें बताना है, और कभी भी पाथ बताना हो कि रीच कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब यू से वी में पहुंच सकता हूँ कि नहीं अनडायरेक्टेड ग्राफ में, तो वो तब हो जाता है जब अगर वो सेम कंपोनेंट में हो। अगर ये कंपोनेंट है तो इसका मतलब कि ये कनेक्टेड है, तो मैं 1 से 3 पहुंच सकता हूँ। तो डीएसयू का हिंट ऐसे आता है। अब बस डीएसयू से एक चीज अलग है कि हमें कोई भी रैंडम एज पे, कोई भी रैंडम वर्टेक्स पे नहीं बताना, हमें सिर्फ ब्लैक वर्टेक्स पे बताना है, और यहाँ पे कलर भी टॉगल करना है। तो कलर वाली चीज अभी तक डीएसयू में नहीं होती,
तो अगर नहीं होती तो हमें डालनी पड़ेगी डीएसयू में। तो अगर सिंपल डीएसयू का कोड देखें तो एक सेकंड में डीएसयू का कोड दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपल डीएसयू का कोड कुछ ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि रैंक और पेरेंट होता है, और बस मतलब दो ही वेक्टर बनते हैं रैंक और पेरेंट के। तो पेरेंट बताता है कि मेरा पेरेंट कौन है, यू का पेरेंट कौन है, और रैंक बताता है कि इसके यू के जो कंपोनेंट में कितने वर्टिसेस है उसके कंपोनेंट में। तो ये चीज वो बताता है। तो अब इसमें हमें क्या चीज डालनी है, हमें एक कलर वाला लॉजिक डालना है कि मैं जब भी ज्वाइन करूं तो मुझे ये पता चल जाए कि मेरे कंपोनेंट में कितने ब्लैक वर्टिसेस हैं। वापस अगर वन वन टू लेट्स से 1 2 3 4 थे, तो पहले अगर ये एजेस थे, ये अब जैसे ये समझ लो ये कभी ना कभी कनेक्ट हो गए और अभी सब वाइट है। अब और ये 1 2 3 थे, और ये B4 था, और ये वाइट है। तो अगर मुझे क्वेरी आती है 2 3 की, मतलब नहीं, ऐसे नहीं, क्वेरी तो सिर्फ 2 की आएगी। तो अगर क्वेरी आती है 2 की, कि मुझे बताना है कि क्या मैं 2 से कोई ब्लैक वर्टेक्स पे पहुंच सकता हूँ कि नहीं, तो अभी तो आंसर होगा नो, क्योंकि मैं 2 से 3 पे पहुंच सकता हूँ पर वो वाइट है, 2 से मैं 1 पे पहुंच सकता हूँ पर वो वाइट है। तो अगर मैं किसी एक को भी चेंज कर दूं, इसको ब्लैक कर दूं, तो अब अगर 2 के लिए क्वेरी करूंगा तो उसका आंसर भी यस हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 से ब्लैक पे पहुंच सकता हूँ। 1 के लिए करूंगा तब उसका भी आंसर यस हो जाएगा। 3 के लिए करूंगा उसका भी आंसर यस हो जाएगा। तो एक को चेंज करने से पूरे कंपोनेंट में चेंज हो गया, जो भी इससे कनेक्टेड थे उसमें चेंज हो गया। तो एक कंपोनेंट में अगर हम ये रख ले कि इस कंपोनेंट में, इसके कंपोनेंट में कितने ब्लैक वर्टिसेस थे, तो उससे बस हमें, अगर ब्लैक वर्टिसेस का काउंट ग्रेटर देन 0 आएगा तब मैं यस रिटर्न कर दूंगा, नहीं आए अगर 0 ही आएगा तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। तो इससे ब्लैक से व्हाइट वाला टॉगल भी लॉजिक हैंडल हो जाएगा। अगर मेरे को कोई काउंट वेक्टर है, वो यू का बताता है कि यू के कंपोनेंट में कितने ब्लैक वर्टेस हैं। तो अगर अब मैं बोलता हूँ इसको टॉगल कर दो, तो सिंपली काउंट ऑफ यू माइनस माइनस कर दो। और अगर मतलब टॉगल अगर ब्लैक से व्हाइट हुआ है, और अगर व्हाइट से ब्लैक हुआ है तो प्लस प्लस कर दो। तो बस हमें ये वो वाला लॉजिक डालना है कि इसके वो मैं काउंट रख पाऊँ कि इसके कंपोनेंट में कितने ब्लैक वर्टिसेस है। अगर बस वो कर लिया तो उससे डीएसयू, सिर्फ डीएसयू में वही चीज ऐड करनी बची है। तो वो कैसे होगी, तो ऐसे होगी कि मैं कोड ही दिखा देता हूँ। तो ये नहीं है, ये रहा। तो वही डीएसयू का कोड है, तो उसमें ये दो नए वेक्टर इंट्रोड्यूस करें। ये दो वेक्टर क्या है, ये पहला बताएगा कि मेरे कंपोनेंट में कितने ब्लैक वर्टिसेस है, और ये बताएगा कि मेरा कलर क्या है। तो अभी मैंने डिनोट करा है जीरो, जीरो स्टैंड्स फॉर ब्लैक, तो ऐसी नोटेशन है, जीरो इज ब्लैक, नहीं नहीं, जीरो इज वाइट, सॉरी। पहले सब वाइट थे तो इसलिए सबको जीरो से डिक्लेयर कर दिया, और जीरो स्टैंड करता है वाइट के लिए। और ये बताएगा कि मेरे कंपोनेंट में कितने ब्लैक वर्टिसेस हैं, और ये बताएगा कि मेरा कलर क्या है, मेरे नोड का, ये कंपोनेंट का बता रहा है और ये मेरे नोड का बता रहा है। ओके, सो ये वाली चीज सेम है। ये मर्ज का, ये मेरे पेरेंट फाइंड करने का वो लॉजिक सेम है, सेम सेट फाइंड करने का वो भी सेम है, यूनियन करने का भी सेम था। बस एक जगह ऐड हुआ है। ऐड क्या हुआ है, ये वाला, ये लाइन ऐड हुई है। ये लाइन क्या है कि हम क्या असाइन कर रहे थे, y को x, मतलब ये वाली लाइन क्या कर रही थी, अगर दो x और y है तो ये क्या कर रही है, पेरेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू x। तो पेरेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू x, इसको पेरेंट बना दिया। तो इसको पेरेंट बना दिया, तो लेट सपोज इसका कोई कंपोनेंट था और इसका कोई कंपोनेंट था। तो मतलब इसमें जितने भी, अगर इसमें x ब्लैक वर्टिसेस है तो, और इसमें y ब्लैक वर्टिसेस है, तो अब इसमें कितने ब्लैक वर्टिसेस हो जाएंगे, y प्लस एक्स हो जाएंगे। तो यहीं पे भी वही करा है कि अगर x पेरेंट बनाए तो x के पेरेंट में y के ब्लैक वर्टिसेस ऐड कर दो बस। और उसका उल्टा यहाँ पे, अगर y पेरेंट बनाए तो y के कंपोनेंट में जितने ब्लैक के वर्टिसेस थे वो ऐड कर दो। ये यूनियन का लॉजिक बस इतना ही चेंज हुआ है, बाकी सब सेम था, यहाँ पे एक एक लाइन का एडिशन था। और कलर, यहाँ पे दो नए फंक्शन, ये पहले वहां पे नहीं थे, यहाँ पे ऐड करें। तो कलर चेंज कैसे होगा कि
पहले तो मैं अपना पेरेंट जो भी होगा मैं अपने पेरेंट में लॉजिक हैंडल करूंगा कि मेरे पेरेंट के कंपोनेंट में ही तो चेंजेस हुए हैं। कंपोनेंट किसी का भी कैसे पता चलता है, उसके पेरेंट से। तो काउंट ऑफ पेरेंट, अगर मेरा कलर अभी ब्लैक था तो वो कम मतलब मेरा कलर कम हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे जीरो था, जीरो डिनोट्स वाइट, तो अगर जीरो था तो जीरो तो हमें काउंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो वो माइनस जीरो हो जाएगा। पर अगर ब्लैक होता तो वो माइनस वन हो जाता। माइनस वन मीन्स ब्लैक कम हुआ है। तो अगर माइनस वन हुआ है मतलब ब्लैक कम हुआ है, तो कलर आई वन होता तो पेरेंट का काउंट एक कम हो जाता। अगर पहले 5 ब्लैक थे, अब मैंने ब्लैक से वाइट कर दिया, तो 4 ही ब्लैक बचेंगे ना, तो काउंट ऑफ पेरेंट माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जोर कर दिया है, मतलब 0 से 1, 1 से 0 हो गया। मेरा कलर, यहाँ पे पेरेंट का कलर नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे मेरा कलर चेंज हुआ है, कलर ऑफ आई। यहाँ पे आई पास कर देते, और मेरे पेरेंट में कलर वो ऐड हो गया है। तो काउंट ऑफ पेरेंट प्लस इक्वल्स टू कलर आई, तो यहाँ पे जो माइनस करा था वो प्लस कर दिया। नहीं तो मैं नॉर्मली 1 और 0 लिख के भी कर सकता था, पर दिस इज मच सिंपलर और शॉर्टर। तो ये कलर चेंज करने का हुआ है। तो पेरेंट में काउंट चेंजेस हुआ है, कलर मेरा खुद का चेंज हुआ है, पर पेरेंट से मेरे को अपना वो कंपोनेंट पता चलता था। तो पेरेंट कंपोनेंट एक कंपोनेंट का काउंट मेंटेन होगा, वो चेंज हुआ है। तो कंपोनेंट का अगर व्हाइट से ब्लैक हुआ है तो एक काउंट कम हो गया है, और एक काउंट बढ़ गया अगर व्हाइट से ब्लैक हुआ, और ब्लैक से व्हाइट हुआ तो एक काउंट घट गया। और रीचेबल ये कैसे पता चलेगा? पेरेंट अपना कंपोनेंट निकाल लिया, इससे कंपोनेंट पता चल गया मैं इसके कंपोनेंट में हूँ, तो बस उसके कंपोनेंट में कुछ वन होना, मतलब 1 2 3 कुछ तो होना चाहिए। अगर कुछ भी है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अगर इतना लिख लिया बस, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टाइप इनपुट ले लिया, अगर टाइप वन की क्वेरी है तो उन्हें यूनियन कर दिया नॉर्मली, कुछ नहीं करा। और टाइप टू की क्वेरी है तो चेंज कलर फंक्शन हमने बना रखा था वो कर दिया। तो चेंज कलर क्या करेगा कि अब मेरे पेरेंट में अगर व्हाइट से ब्लैक हुआ है तो एक कम कर देगा, एक बढ़ा देगा। व्हाइट से ब्लैक हुआ है तो मतलब एक ब्लैक बढ़ गया है, तो मतलब काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। और ब्लैक से व्हाइट हुआ है तो एक काउंट, काउंट ऑफ पेरेंट माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरी चीज थी रीचेबल। रीचेबल अगर ये तीसरी वाली क्वेरी थी, अगर रीचेबल है, रीचेबल यहाँ पे पता चल गया था कि पेरेंट का कंपोनेंट निकाल लिया, कंपोनेंट में काउंट कुछ मेंटेन हुआ है, उसको ट्रू अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इससे ये भी हो गया। इस बार ये भी थोड़ा इजी था, इसमें बस अगर डीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन आती है तो बस ये नया लॉजिक डालना आना चाहिए। अब इसके बाद डी क्वेश्चन। ये इनमें से ई से अच्छा ये लगा मुझे ज़्यादा। तो इसमें काफ़ी तरीके के सेल, पहले तो एक ग्रिड दे रखी है और उसमें काफ़ी तरीके के सेल्स हैं। तो डॉट मीन्स एम्प्टी सेल, हैशटैग मीन्स ऑब्स्टेकल सेल, मतलब उस पर कभी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। एस से स्टार्ट, जी से गोल, तो हमें एस से जी पे जाना है। हमारा मतलब काम क्या है इस क्वेश्चन में, एस से हमें जी पे जाना है। और एक है ओ, एक है एक्स। तो ओ का मतलब है ओपन, एक्स का मतलब है क्लोज। तो मतलब अगर, मतलब मैं ओपन डोर्स पे ही जा सकता हूँ, क्लोज पे नहीं जा सकता। तो क्लोज को भी हैशटैग की तरह मान सकते हो, पर इसमें अलग है, ये हैशटैग से अलग इसलिए है क्योंकि ये स्विच है, एक स्विच वाला भी सेल है। अगर स्विच वाले सेल पे जाता हूँ, अगर कभी भी ग्रिड में स्विच वाले सेल पे पहुंच गया, तो क्या होगा कि सारे ओ एक्स बन जाएंगे और सारे एक्स ओ बन जाएंगे। मतलब सारे ओपन डोर बंद हो जाएंगे और सारे क्लोज डोर खुल जाएंगे। तो ये स्विच का ये काम था, ओ से एक्स और एक्स से ओ कर देता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं स्टार्ट पे हूँ, मैं राइट लेफ्ट अप डाउन जा सकता हूँ, और मुझे इवेंचुअली जी पे पहुंचना है। तो और अगर मैं पहुंच सकता हूँ तो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताना है कि कितने कम से कम स्टेप में मैं पहुंच सकता हूँ। एक मूव एक स्टेप को डिनोट करता है। और हैशटैग पे नहीं जा सकता और बाकी सब पे जा सकता हूँ। हैशटैग के अलावा, हाँ हैशटैग और क्लोज के अलावा, हैशटैग और क्लोज के अलावा जा सकता हूँ कहीं भी। बस ये क्लोज कभी ओपन भी हो सकता है स्विच के बेसिस पे। तो ऐसा है कि एक बार भी अगर स्विच पे चला गया तो सारे एक्स ओ बन जाएंगे और सारे ओ एक्स बन जाएंगे। अगर एक बार भी क्वेश्चन पे चला गया तो सारे एक्स ओ बन जाएंगे, ओ एक्स बन जाएंगे, और अगर अगली बार वापस चला गया तो भी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे।
कि एक्स ओ से वापस एक्स, अगर दूसरी बार चला गया तो वापस ये और वापस ये। तो ऐसा है कि सिर्फ मैं इसको 1 और 0 से ही डोनेट कर सकता हूँ, क्योंकि दो ही स्टेट्स हैं। या तो ओरिजिनली वाला मतलब जो पहले लिखा हुआ था वही है, कि एक्स लिखा हुआ था मतलब उसका मतलब क्लोज ही है, ओ लिखा हुआ था मतलब उसका मतलब ओपन ही है। तो ये ओरिजिनल स्टेट है। पर एक दूसरी स्टेट पे भी पहुंच सकता हूँ कि जिसका मतलब है कि एक्स लिखा हुआ है पर उसका मतलब एक्स नहीं है, उसका मतलब ओपन है। और ओ लिखा हुआ है तो उसका मतलब ओपन नहीं है, उसका मतलब क्लोज्ड है। ये कब हुआ होगा? जब मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम स्विचेस पे वहां पे चढ़ा होगा। अगर मैं एक बार स्विच पे चढ़ा तब ये वाली स्टेट पे पहुंच गया, दूसरी बार चढ़ा तो ये वाली स्टेट पे, तीसरी बार चढ़ा तो ये वाली स्टेट पे पहुंच गया। तो बस 0 और 1 से ये डोनेट कर सकता हूँ कि अभी क्या मतलब है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या एक्स ही है या एक्स का मतलब ओ है। तो बस 0 और 1 से अगर ये डोनेट कर सकता हूँ, डोनेट नहीं डिनोट, सो एक्स और ओ है। तो अगर अगर ये वाला लॉजिक नहीं होता तब नॉर्मली क्वेश्चन कैसे होता है कि स्टार्ट और गोल पे होते हैं। अगर बीएफएस करते हैं हम यहाँ से, अगर नॉर्मली ग्रेड वाले क्वेश्चन में पास अगर बताना होता है डॉट और हैशटैग होते हैं, तो उसमें कैसे बताना होता है कि मैं रो कॉमा कॉलम पे हूँ, मैं यहाँ पे 4 जगह पे जाऊंगा और वहां पे तभी जाऊंगा अगर मैं उससे पहले कम डिस्टेंस उस पर विजिटेड नहीं हो। हाँ, विजिटेड से भी हो जाता है। हम्म, अगर उस पे विजिटेड नहीं हूँ तब मैं वहां पे चला जाऊंगा। बस ऐसे करने से एस से जी पे पहुंच जाते हैं। हाँ, तो विजिटेड नहीं हो और वो हैशटैग नहीं हो तो मैं उसको वहां पे पहुंचा देता हूँ, और जब भी क्यू से चलता रहता है, जब भी मेरे पास ये जी वाला सेल आ जाता है, गोल वाला सेल आ जाता है, मतलब रो और कॉलम जी के बराबर हो जाते हैं, तो मैं वहां पे रिटर्न कर देता हूँ। नॉर्मली क्यू से बीएफएस से ऐसे हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया तो उससे क्या होगा, बस उसके बाद इसके साथ रो कॉमा कॉलम के साथ एक और चीज मेंटेन करनी पड़ेगी इस बार। वो चीज क्या होगी कि हैश मतलब स्टेट कौन सी है, ये वाली बात, कि ये स्टेट 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये बताएगा कि अभी तक रास्ते में मैं कितने क्वेश्चन मार्क पे चढ़ के आया हूँ। अगर मैं इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क पे चढ़ के आया हूँ तो ये वाली स्टेट होगी ओरिजिनल स्टेट। पर अगर मैं ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क पे चढ़ के आया हूँ तो ये वाली स्टेट होगी, मतलब उल्टी वाली स्टेट। एक्स ओ को रिप्रेजेंट करेगा, ओ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। हम पूरी ग्रिड में ऐसे जाके चेंज नहीं कर सकते, अगर हर बार मैं जाके ग्रिड में चेंज कर दूं तो वो काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला होगा, 500 इंटू 500 इंटू 500 तो वो नहीं कर सकते। तो बस मैं यही मेंटेन रख सकता हूँ, ये दो, एक बुलियन वेरिएबल की कौन मतलब स्टेट, या क्या ये ट्रू स्टेट है या फॉल्स स्टेट। ट्रू स्टेट मतलब ओरिजिनल वाली, या फॉल्स को ऐसे बोल सकता हूँ कि चेंज्ड वाली या रिवर्स वाली। तो मैंने कॉन्टेस्ट में तो मैंने इसको प्राइवेट मैंने तो डिस्ट्रा समझ के वैसे कर दिया था, पर इसको नॉर्मल ही सिंपल तरीके से बीएफएस लगा के भी कर, मतलब डिस्ट्रा भी एक तरीके का बीएफएस से प्राइवेट में बस की प्रायोरिटी क्यू की जगह सिर्फ क्यू रखने से भी हो जाएगा, कि यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू की जगह क्यू वाला लॉजिक चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। तो अगर ऐसी ये वाला इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, तो ग्रेड ग्रेड रखी, ग्रेड इनपुट करी, और ये 4 वेरिएबल रख लिए, रो स्टार्ट, रो एंड, कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड। तो ये स्टार्ट है, ये गोल है, ये गोल डिनोट करेगा, ये स्टार डिनोट करेगा। ऐसे। तो अब अब जैसे नॉर्मली विजिटेड कितने का बनता है, एन कॉमा एम का बनता है, पर इस बार इसमें दो की जगह 3 स्टेट्स है, एन कॉमा एम कॉमा टू। क्यों? क्योंकि ये तीसरी स्टेट है कि या तो 0 वाली स्टेट है या 1 वाली स्टेट है, मतलब ट्रू स्टेट या फॉल्स स्टेट ऐसे बोल सकते हैं। तो बस अब इसको सिंपल अगर मैं यहाँ साथ साथ ही चेंज कर दूँ, तो इसको वेरिएबल रख लेंगे, इसको 0 रख लेंगे, और इसको प्रायोरिटी क्यू की जगह नॉर्मल क्यू रख लेते हैं, और इस सबको हटा देते हैं। और इसको क्यू नाम दे देते हैं, इसको क्यू में पुश कर देते हैं, और पिक डॉट फ्रंट। नॉर्मल बीएफएस कैसे होता है कि पहले मैंने रो स्टार्ट कॉमा रो कॉमा कॉलम स्टार्ट डाल दिया, और ये स्टेप्स डाल दिए, कितने स्टेप्स पे है। 4 चीजें क्या रिप्रेजेंट कर दी है, स्टेप्स, रो, कॉलम और टर्न। टर्न नहीं, स्टेट। स्टेट मतलब 0 या 1 से प्रेजेंटेड होगी। तो ये 4 चीजें डाल दी, और अगर ये क्यू में डाल दिया, अब ये बीएफएस चलना स्टार्ट हो गया। तो पहले ये स्टेप्स,
रो कॉलम स्टेट। अब अगर मैं ये गोल पे पहुंच गया तो मैं यहाँ पे स्टेप्स करके रिटर्न कर दूंगा कि मैं, क्योंकि बीएफएस हो रहा है और हर स्टेप में +1 हो रहा है, तो एज सुन एज मैं गोल पे पहुंच जाऊं तो मैं उसको, हाँ, मैं रिटर्न कर सकता हूँ कि मैं पहुंच गया। अब ये डीआरडीसी मेंटेन करते हैं कि ये 4 डायरेक्शन, पहले ये लेफ्ट, लेफ्ट नहीं, अप, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इन 4 डायरेक्शन में जाने के लिए डीआरडीसी मेंटेन करते हैं। तो मैं नए रो पे गया, मतलब ये नया रो नया कॉलम सेल है, तो पहले तो ये ग्रिड के अंदर लाई करना चाहिए, ये 4 कंडीशन ग्रिड के अंदर लाई कर रहा है। और अब ये वाली 2 नई कंडीशन है। उससे पहले ये देख सकते हैं, अगर हैशटैग ही है तब तो उधर पहुंच के उधर जाके मतलब जा ही नहीं सकता, तो हैशटैग है तो कंटिन्यू कर दो कि ये वाला जो है, ये न्यू रो कॉमा न्यू कॉलम वाला सेल है वो बेकार है, तो मतलब चले जाओ हैशटैग से आप अगले कोई सेल पे जाके देखो। नहीं तो अगर स्टेट जीरो है, स्टेट जीरो का क्या मतलब है, स्टेट, स्टेट जीरो थी, कहाँ गया, खो गया, हाँ खो गया। पर स्टेट जीरो, ये स्टेट जीरो थी, वो क्या बताती है, जीरो और एक्स, मतलब जीरो का मतलब जीरो ही है, एक्स का मतलब एक्स ही है। पर स्टेट वन क्या बताएगी कि जीरो का मतलब एक्स है, एक्स का मतलब जीरो है। तो यहीं पे अगर स्टेट जीरो है तो मतलब अगर एक्स है तो वहां नहीं जा सकता, मतलब वहां पे बंद दरवाजा है, क्लोज डोर है। पर अगर स्टेट वन है तो मतलब उसमें उल्टा है कि ओ का मतलब एक्स है, तो मतलब अगर स्टेट वन है और ओ है तो मतलब ये ओ नहीं है, ये एक्स है, तो इसको भी कंटिन्यू कर दो कि यहाँ पे भी नहीं जा सकता। तो ये 3 कंडीशन है कि जब मैं सेल पे नहीं जा पाऊंगा, तब अदरवाइज मैं जा पाऊंगा। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह सिंपल विजिटेड रख लेते हैं, इसको विजिटेड नाम दे दिया है, विजिटेड है और इसका विजिटेड जीरो हो जाना चाहिए, विजिटेड जीरो है इसका, तो न्यू स्टेट रखा और विजिटेड इसका 1 मार्क कर दिया। हाँ, और एक और चीज, अब ये स्टेट चेंज कैसी होगी, अगर मैं आया यहाँ पे, नए ये नया सेल था मेरा, एन, एन रो का एन कॉलम, तो अगर ये क्वेश्चन मार्क है तब मतलब स्टेट फ्लिप हो गई होगी। अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो जैसे एक एक बार क्वेश्चन मार्क आया तो स्टेट वन जीरो पे था तो वन पे पहुंच गया, एक और बार क्वेश्चन मार्क आया तो वन पे था तो जीरो पे पहुंच गया। तो वो यही कर रहा है, ये इसका जोर ले लेते हैं वन के साथ। इसका जोर वन का क्या मतलब होता है कि वन जीरो बन जाता है और जीरो वन बन जाता है। अगर मैं जैसे वन और वन करता हूँ तो वो जीरो बन जाता है, और जीरो और वन करता हूँ तो वो वन बन जाता है। तो इससे नई स्टेट पता चल गई कि नई स्टेट क्या है, अगर क्वेश्चन मार्क है तभी स्टेट चेंज हुई है। तो अगर चेंज हुई है तो इसको, अभी तो अभी नई स्टेट पे नहीं पहुंचा, पहले पहुंच जाऊंगा फिर स्टेट चेंज होगी। तो विजिटेड तो स्टेट को ही करा है, पर प्रायोरिटी क्यू में न्यू स्टेट पुश करी है कि मैं पहुंचा, तो अगर जैसे जीरो से पहुंचा था तो मैं विजिटेड तो जीरो वाली स्टेट को ही करूंगा, पर अब तो मेरी स्टेट वन हो गई है तो मैं प्रायोरिटी क्यू में वन पुश करूंगा। तो प्रायोरिटी क्यू मेरा करंट बताता है, पर विजिटेड बताता है कि मैं कौन से तरीके से विजिट करा था। तो थोड़ा सा ही फर्क है, पर अगर मैं बोलता हूँ न्यू स्टेट भी रखता तो भी शायद चल जाता, पर वैसे भी करना ऐसे ही चाहिए। तो प्रायोरिटी क्यू नहीं रख के क्यू में रख लिया कि इसको विजिटेड कर दिया और क्यू में डाल दिया। क्यू में अब क्या डालना कि एक तो स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप्स थे, ये स्टेप्स निकाले थे, अब एक स्टेप ज्यादा हो गया तो स्टेप प्लस वन हो गया। नए रो पे पहुंचा, नई कॉलम, ये नया सेल है मेरा, और कैसे पहुंचा, नई स्टेट के साथ। न्यू स्टेट तो पहले स्टेट ही रखी है, पर अगर वो क्वेश्चन मार्क है तो स्टेट फ्लिप हो जाएगी। ऐसे कर करके क्यूब से पॉप कर दिया, और बस। और यहाँ पे ये वाला एंड वाला लॉजिक हैंडल हो रखा था, अगर गोल पे पहुंच गया तो मैं यहीं पे स्टेप्स रिटर्न कर दो, नहीं तो अगर कभी भी नहीं पहुंचा, मतलब अगर क्यू खत्म हो गई मेरी, तो और क्यू खत्म हो गई और रिटर्न नहीं हुआ होगा मतलब, तो यहाँ पे -1 रिटर्न कर दो। अगर ये वाले पे कभी नहीं पहुंचे मतलब गलत, मतलब हम पहुंच ही नहीं पा रहे, तो -1 रिटर्न कर दो। क्या हो गया, ऐसे भी मतलब नॉर्मल क्यू रखने से भी चल जाएगा, मैंने प्रायोरिटी क्यू रख लिया था, मैंने डिस्ट्रा समझ लिया था। पर अगर डिस्ट्रा और प्रायोरिटी क्यू, डिस्ट्रा और नॉर्मल क्यू में ये फर्क हो जाता है कि अगर हर बार हर स्टेप में +1 हो रहा हो या प्लस कुछ कांस्टेंट हो रहा हो तब हम उसे बीएफएस या नॉर्मल क्यू से कर सकते हैं। पर अगर हर स्टेप में किसी स्टेप में एक्स प्लस हो रहा है, किसी स्टेप में वाई प्लस हो रहा है, तब उसे हम क्यू या
सिंपल विजिटेड से नहीं रख के हमें उसको डिस्टेंस वेक्टर बना के एक्स्ट्रा करना पड़ता है प्रायोरिटी क्यू से। तो दोनों में यही फर्क है। तो इसमें जैसे हर स्टेप में +1 हो रहा था, तो अगर मैं पहले जब भी पहुंच गया तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, तो उसको नॉर्मली सिंपल क्यू और सिंपल विजिट वेक्टर से ही हो जाएगा। हम्म, हम्म। अब उस पे फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्या, थर्ड क्वेश्चन सी प्रॉब्लम पे। तो सी प्रॉब्लम भी फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि दे रखा है कि दो एरेज है, ए और बी एरे है। इसको A1 एन साइज के, दोनों सेम साइज के, A1 से एन, B1 से Bn। और क्वेरीज है, क्यू क्वेरीज है। क्यू क्वेरीज क्या बोलती है कि ए को एक्स से वी कर दो, मतलब क्या, ऐसे नहीं है सॉरी। तो क्वेरी में तीन चीजें हैं, सी कॉमा एक्स कॉमा वी। सी कैरेक्टर है, तो सी अगर ए है तो मतलब ए एरे में चेंज करना है, सी अगर बी है तो बी में चेंज करना है। मतलब सी एक कैरेक्टर है, ए या बी, तो अगर ए है तो ए एरे में चेंजेस करना है, बी है तो बी एरे में चेंजेस करना है। और चेंजेस क्या है, एक्स कॉमा वी से वो चेंजेस डिनोट होंगे। तो एक्स का कॉमा चेंज मतलब क्या है कि ए एक्स को वाई कर दो, वाई नहीं बी, या अगर बी था तो बी एक्स को वी कर दो। तो ये क्वेरी बोलती है, अगर ये ए है, अगर ये बी है तो सी। सी। तो ये तो क्वेश्चन है। तो अब बताना क्या है, हर क्वेरी के बाद मुझे ये बताना है, ये वाला इसका वैल्यू बतानी है। सम ऑफ मिनिमम ऑफ ऑल द सब, मतलब हर ए या बी में से ए A1 A2, तो A1 नहीं सॉरी A1 B1, A2 B2, A3 B3। तो मुझे इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम और इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, इन दोनों के मिनिमम्स को ऐड कर देना है और वो वैल्यू बतानी है। तो बस यही करना है। तो अब कोई एन और क्यू 2 5 है, तो नॉर्मली हम क्या करते, सिंपल, सबसे सिंपल क्या है कि चेंज कर दो और फिर से ये कैलकुलेट कर दो। तो इसको कैलकुलेट होने में ऑफ एन टाइम लगेगा, और क्यूब क्वेरीज है तो इससे क्यू का क्यू इंटू एन टाइम लग जाएगा, तो वो क्लियरली देगा। तो उसकी जगह क्या करना है, क्योंकि अ, हमें सब पे जाके तो सम करने की क्या जरूरत है। अगर चेंज एक्स इंडेक्स पे हो रहा है तो कुछ तो वैल्यू सिर्फ एक्स की वजह से ही बदली होगी। जैसे अगर ये पहले ये कुछ लेफ्ट में आ रही थी, कुछ राइट में आ रही थी, तो अगर चेंज सिर्फ एक्स इंडेक्स पे हुआ है तो पहले अगर कुछ वैल्यू थी, तो अब वो क्यों सिर्फ, तो अब वो एक्स यहीं पे जो चेंज है उससे ही तो चेंज हुई होगी। इसका आंसर सेम है, इसका आंसर सेम है, बस इसका ही आंसर बदला है। तो इसका आंसर कैसे बदला है वो एक दो वो कर लेते हैं कि एक दो ट्राई कर लेते हैं अलग अलग केसेस, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे ये 1 और 2 था, अब मैं बोलता हूँ 3, इसको 3 कर दो, मतलब ए में चेंज करो, ए में चेंज करो और उसको 3 कर दो। तो इसका क्या मतलब है, ये 1,2 से 3,2 हो गया। तो पहले ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये पहले 1 कंट्रीब्यूट कर रहा था इन दोनों का मिनिमम। अब ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2,3 का मिनिमम, और ये 1,2 का मिनिमम। तो ऐसे चेंज हुआ है। तो सिंपल, सबसे सिंपल क्या कि अगर पहले कुछ लेट से आंसर था, तो अब आंसर कितना हुआ है, पहले अगर कुछ आंसर था तो अब पहले ये 1 कंट्रीब्यूट कर रहा था, पर अब ये 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आंसर कितना हो गया, आंसर +1 हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले अगर आंसर था तो मैं इसका पहले कंट्रीब्यूशन हटा देता हूँ, -1 कर देता हूँ, पर जो इसका न्यू कंट्रीब्यूशन है वो प्लस कर देता हूँ, तो 2 कर दिया। तो इसको आंसर +1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंसर माइनस ओल्ड कंट्रीब्यूशन प्लस न्यू कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन क्या है, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, बस। तो ये पहले ओल्ड ए बी की वैल्यू से पहले ये निकाल लो, फिर चेंज कर दो, फिर न्यू ए बी की वैल्यू से ये निकाल दो, फिर ये नया आंसर हो गया, बस। तो जैसे अगर ड्राई रन करने के लिए ड्राई रन भी कर सकते हैं किसी केस पे, जैसे इस पे ड्राई रन कर लेते हैं। हम्म, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से कैसे हटता है, इसको हटा के इधर ले आते हैं, ये क्वेरीज है। तो ये कितना घंटा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लिख लेते हैं, फिर इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है वो लिख देता है। तो ये कंट्रीब्यूट 2 कर रहा है, मिनिमम ऑफ 1,7 1 4,1 1
1,8 1, ये इतना कंट्रीब्यूट करे तो पहले आंसर 5 है। अब ये क्या बोल रहा है, ए ऑफ 2 को 3 कर दो, तो ए ऑफ 2, दिस इज 1 बेस्ड है या 0 बेस्ड है, हाँ 1 बेस्ड है, तो ए ऑफ 2 को, इसको, इस नंबर को 1 की जगह 3 कर दो, विच मीन्स इसको हटा के, ओ ऐसे नहीं हटेगा क्या, तो ऐसे इसके ऊपर ही लिख देते हैं, इसको 3 कर दो, विच मीन्स कि पहले ये 1 कंट्रीब्यूट कर रहा था, पर अब ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 3, तो विच मीन्स आंसर प्लस हो गया, आंसर हो गया 7। 7 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 माइनस ओल्ड कंट्रीब्यूशन, इसका पहले कितना कंट्रीब्यूशन था 1, -1, और इसको +3, मतलब अब नया कंट्रीब्यूशन क्या है 3, इसको 5 माइनस +1 +3 7 हो गया। एक और चेक कर लेते हैं, बी ऑफ 3 को 3 कर दो, तो बी ऑफ 3 को 3 कर दो, तो अब ये आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये 1 कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब ये कितना और कंट्रीब्यूट, इसका आंसर 9 है क्या, हाँ, ये पहले 1 कंट्रीब्यूट कर रहा था, पर अब ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा 3, तो इसको कैसे लिख सकते, 7, अब इस 5 से कंपेयर नहीं करेंगे, पिछले आंसर से करेंगे, पहले आंसर 5 था, अब आंसर 7 है, तो अब 7 में जो भी चेंजेस होंगे 7 होंगे, तो 7 क्या हो जाएगा, नहीं, अब नया आंसर क्या होगा, वैसे तो नया आंसर होगा 9, 9 कैसे, 2 + 3 + 3 1, दिस इज 9, तो वो 9 कैसे आया, 7 में से ओल्ड कंट्रीब्यूशन क्या था 1, ओल्ड कंट्रीब्यूशन क्या था 1, प्लस नया कंट्रीब्यूशन क्या है 3, विच इज 9, तो ऐसे ही कर सकते हैं, इसका भी कोड भी, इसका भी सिंपल है। हाँ, तो इसको मैं ए और बी कह रहे इनपुट ले ली, और इसको लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन, लिख लेते, चेंज नहीं करते, पर एम एन डिनोट करता है, ये बताएगा कि कंट्रीब्यूशन कितना है, इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, पर रहने देते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो कंट्रीब्यूशन है, एम एन ये बताया कितना कंट्रीब्यूशन है, तो एम एन आई क्या है, मिनिमम ऑफ ई आई कॉमा पी आई, और आंसर क्या है कि इतना इतना कंट्रीब्यूशन, तो ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आंसर टोटल यहाँ से बनते जा रहा है, इसका सम करते रहेंगे, क्वेरीज ली है, तो टाइप अगर ए की है या बी की है, ये दोनों पार्ट एकदम सेम है, बस ए और बी एक जगह चेंज है, तो एक्स और बी इनपुट ले लिया, बस 1 बेस से 0 बेस इंडेक्सिंग कर दी, ये मैंने एन एन साइज के बनाए थे, इसलिए इसको भी एन साइज का ही बनाना है। अब क्या करा कि ए ऑफ एक्स को, पहले तो ओल्ड कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे इस लाइन में क्या हो रहा है, आंसर माइनस ओल्ड कंट्रीब्यूशन, और इस लाइन में क्या, अब ए एक्स को वी कर दिया, और ये यहाँ पे नया कंट्रीब्यूशन बना है, मतलब यहाँ पहले पहली वाली जो लाइन मार्क करी थी उस पे कहाँ गया, हो गया, हाँ ये रहा, पहली वाली लाइन में ये आंसर -1 हुआ है, ये वाली चीज हटी है आंसर से, और दूसरी वाली लाइन में ये नया बना है, ये नंबर 3 बना है, वो कैसे बनना है, मिनिमम ऑफ 3,7, पहले इसको चेंज कर दिया, 1 को काट के 3 लिख दिया, और उनका मिनिमम ले लिया, तो न्यू कंट्रीब्यूशन ऐसे बना, आंसर में वो नया कंट्रीब्यूशन ऐड हो गया, ऐड न्यू कंट्रीब्यूशन, और ये आंसर अब प्रिंट कर दिया, सिमिलर सब सेम है, यहाँ पे बस ये लाइन का फर्क है, यहाँ पे ए को चेंज करा था, यहाँ पे बी को चेंज करा है, बाकी वही चीज है, कंट्रीब्यूशन माइनस करा, ये करा, नया कंट्रीब्यूशन का बना मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, और उसको आंसर में ऐड कर दिया, आंसर प्रिंट कर दिया, तो ऐसे हो गया ये, ओके। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा वैसे स्टेटमेंट वाइड कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे वैसे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा इजी था, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि, क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसे है कि ये हमें ग्रेड दे रखी है, तो इसको हटा देते हैं, ये हमें ग्रेड दे रखी है, और इसका क्या, ग्रेड का क्या मतलब है कि 3 लोग हैं, 1 2 3 n लोग हैं, और m वोट्स है, 1 2 3 4 5 m वोट्स है, तो इसका क्या बोलते हैं, तो फॉर थर्ड राउंड में सेकंड ने किसको वोट दिया, 1 को वोट दिया, फोर्थ राउंड में थर्ड ने किसको वोट दिया, 1, तो आई कॉमा जे क्या रिप्रेजेंट करेगा इसका, कि आईएथ पर्सन है और जेथ राउंड है,
तो उसने वोट jth राउंड है और उसने वोट क्या दिया, 1 या 0 वोट देगा। तो ये है। अब क्वेश्चन बोलता है कि कुछ पॉइंट सिस्टम है, तो मतलब इनके 1 2 3 के कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनिशियली सबके 0 पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स किसी को मिलते रहेंगे और हमें लास्ट में बताना है कि सबसे ज्यादा किसके पॉइंट्स में। तब पॉइंट्स मिलने का क्या है वो, तो पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज x पीपल चोज 0 एंड y पीपल चोज 1। तो x लोगों ने 0 को चूज करा, y लोगों ने 1 को चूज करा। तो इफ ये वाला लेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 एवरीवन रिसीव 1 पॉइंट फॉर दैट वोट। तो अगर x अगर 0 है या y 0 है, तो मतलब अगर किसी ने भी 0 को वोट नहीं दिया, तो सबको 1 1 पॉइंट मिल जाएगा, +1 +1 +1, सबको +1 पॉइंट मिलेंगे। अगर किसी ने भी 1 को वोट दिए नहीं दिया, मतलब किसी ने भी 1 को वोट नहीं दिया, तो मतलब सबको +1 पॉइंट मिल जाएंगे। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी 0 है, तो दूसरे वाले को सब पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब जिन्होंने भी वोट दिया सबको पॉइंट मिल जाएंगे। अगर सब लोग सेम ही चीज चूज करते हैं तो सबको पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसे समझ सकते हैं। पर अगर अलग अलग वोटिंग है, अलग अलग मतलब कुछ लोगों ने 1 को वोट, कुछ लोगों ने 0 को वोट दिया और कुछ लोगों ने 1 को वोट दिया, तब क्या होगा, जो माइनॉरिटी होगी, मतलब अगर 1 को कम वोट्स मिले, अगर 1 को कम वोट्स मिले, तो जिन्होंने भी 1, जैसे अगर तीन लोगों ने 1 को वोट दिया और 5 लोगों ने 0 को वोट दिया, 3 लोगों ने 1 को वोट दिया और 5 लोगों ने 0 को वोट दिया, तो 1 माइनॉरिटी में है। 1 माइनॉरिटी में होने का मतलब है कि इन तीन लोगों को +1, एक 3 लोगों को +1 पॉइंट्स मिल जाएंगे। पर लेट सपोज कि 4 बंदों ने 1 को वोट दिया पर 2 बंदों ने 0 को वोट दिया, तो अब 0 माइनॉरिटी में है, तो मतलब जिन जिन ने भी 0 को वोट दिया था उनको +1 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट सिस्टम है। तो ग्रेड का साइज छोटा है, एनएम मतलब 100 है, तो हम एनएम या एनएम स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें लास्ट में बताना है सबसे ज्यादा पॉइंट कितने, अगर 3 लोगों के भी मतलब अगर टाई भी हो रहा है पॉइंट में, तो हमें सबका बताना है सबके ज्यादा ज्यादा किस किस के पॉइंट्स थे। हाँ, तो जैसे अगर इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, ये पहले राउंड की वोटिंग ऐसे रिप्रेजेंट है, देश देश देश, इसको थोड़ा जूम कर ले। तो फर्स्ट वोट में पर्सन 1 ने किसको वोट दिया, पर्सन 1 ने किसको वोट दिया, ये फर्स्ट 1 को वोट दिया, 1 को वोट दिया। पर्सन 2 ने किसको वोट दिया, पर्सन 2 ने 1 को वोट दिया। पर्सन 3 ने 0 को वोट दिया। तो ऐसे वोटिंग है। तो 1 को कितने वोट्स मिले, 1 को 2 वोट्स मिले। 0 को कितने वोट मिले, 1 वोट मिला। 1 को 2 वोट मिले, 0 को 1 वोट मिला। माइनॉरिटी ये है, तो मतलब 0 को जिसने भी वोट दिया उसको +1 पॉइंट दे दो। तो 0 को किसने वोट दिया था, 3 को, 3 ने माइनॉरिटी को वोट दिया, तो +1 पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली एक बार सेकेंड राउंड भी देख लेते हैं। 1 ने 1 को वोट दिया, पर्सन 2 ने 0 को वोट दिया और पर्सन 3 ने 1 को वोट दिया। तो पर्सन ऐसे तो ओनली पर्सन 2 रिसीव्स 1 पॉइंट। क्यों, क्योंकि पर्सन 2 ने माइनॉरिटी को वोट दिया। 0 के कितने वोट थे, 1, 1 के कितने वोट है, 2। तो 0 माइनॉरिटी में माइनॉरिटी को वोट दिया तो पॉइंट मिल गया। तो ऐसे तो हमें लास्ट में जाके क्या हुआ कि 1 को 1 पॉइंट मिला, 2 को 3 पॉइंट मिले, 3 को 3 पॉइंट मिले। तो मैक्सिमम पॉइंट किसके, 2,3 के, तो हमने 2,3 आउटपुट कर दिया। तो ऐसे तो ये बस इम्प्लीमेंटेशन ही बचा है कि हम ऐसे कुछ का एक वेक्टर मेंटेन करके रखेंगे पॉइंट्स का, और लॉजिक के हिसाब से पॉइंट बढ़ाते रहेंगे। लास्ट में जिसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो रिटर्न कर देंगे यार। तो कोड ऐसे है कि ऐसे, ये नहीं कहाँ गए, तो एनएम लिया, ये तो एरे ले ली, और यहाँ पे ये कैरेक्टर था, मतलब 1 या 0 कैरेक्टर था, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब पॉइंट्स है, ये बताएगा लास्ट में कि किसको कितने पॉइंट्स हैं। तो आ, 1 को मतलब x वोट्स मिले, 0 को y वोट्स मिले, ऐसे रिप्रेजेंट करा है। 1 बताएगा कि 1 कितने वोट्स है, 0 बताएगा 0 कितने वोट्स है। तो और हम पहले ये कॉलम वाइज चल रहे हैं, तो मतलब पहले हम पहले कॉलम को पूरा स्कैन करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को। तो मतलब पहले ये स्कैन होगा, फिर ये और ये स्कैन होगा। तो ऐसे मतलब वर्टिकली मतलब पहले ऐसे चल रहे हैं, फिर वर्टिकली उनको स्कैन करेंगे। नॉर्मल तरीके से उल्टा चल रहे हैं, पहले जे का लूप है फिर आई का लूप है।
अब क्या कर रहे हैं कि ये क्या बता रहा है कि एआई ने, मतलब अभी हम ith पर्सन पे, ये पर्सन का लूप है, ith पर्सन ने क्या वोट दिया है। अगर वन को वोट दिया तो वन प्लस प्लस कर दो, नहीं तो जीरो को प्लस कर दो। मतलब ये बता रहे ith पर्सन ने jth राउंड में, तो अगर अभी हम jth राउंड पे, तो ith पर्सन ने jth राउंड पे क्या वोट दिया, अगर वन वोट दिया तो वन प्लस प्लस, एल्स जीरो प्लस प्लस। अब हमें माइनॉरिटी पता लगानी है, तो मतलब माइनॉरिटी कौन, जिसके कम वोट होंगे वो माइनॉरिटी होगी। पर यहाँ पे क्या करें कि अगर वन या जीरो को, कोई किसी को भी जीरो है तो वो जीरो वाली कंडीशन, मतलब सबको प्लस वन अगर ये है, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, बाकी दूसरे वाले को सबको प्लस वन प्लस वन प्लस वन, प्लस सबको प्लस वन करना ही सेम है कि सबको वही रखो, क्योंकि हमें एट लास्ट पता नहीं सबसे ज्यादा किसके पॉइंट थे। जैसे अगर पहले सबके 3 पॉइंट थे, अगर पहले एरे 2 3 4 होती, अब उसको अगर मैं 3 4 5 भी कर दूं तो वो हुई तो सेम अमाउंट से ही चेंज है, तो मैं उसको एज इट इज मेंटेन ही रखता हूं। मतलब 2 3 अगर सबको ये वाली कंडीशन, तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा, सबको प्लस 1 पॉइंट मिले या किसी को भी पॉइंट ना मिले, एक ही बात है। तो नहीं तो यहाँ पे करने को हम मार्क भी कर सकते हैं, अगर वन जीरो है तो जीरो माइनॉरिटी, जीरो वालों को प्लस 1 होगा, अगर जीरो जीरो है तो वन वालों को प्लस 1 होगा, ऐसे करके हम माइनॉरिटी असाइन कर देंगे और यहाँ पे वही प्लस कर देंगे। पर अगर यहाँ पे माइनॉरिटी, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो माइनॉरिटी पता लगानी है। तो अगर वन कम वोट है, वन के कम वोट है तो माइनॉरिटी वन है, अगर अदरवाइज माइनॉरिटी जीरो। उसने बोला है कि एन ऑड है, एन ऑड होने का क्या मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू वाई वाली कंडीशन कभी नहीं आएगी, कि टोटल 2x वोट्स हो जाएंगे, पर एन ऑड है तो 2x+1 होगा कभी, मतलब ऑड नंबर ऑफ वोट्स को हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अब इसके ये पता लग गया, इसके बाद हमें मैक्स पता लगाना है कि मैक्सिमम वोट्स किसके आए। तो मैक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ पॉइंट्स आई, बस ये पूरे एरे में ट्रेवल कर और मैक्सिमम निकाली, सबसे ज्यादा किसके पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे जिस जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे उसको वन बेस इंडेक्सिंग में प्रिंट करा दिया, बस। अब अगला, अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। ए, ए भी सिंपल प्रॉब्लम है। ए में क्या है कि एक्स और वाई दो चीजें दे रखे हैं। एक्स मतलब हमारा करंट मंथ है, और वाई मतलब हमें वाई मंथ के बाद बताना है कौन सा मंथ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर जनवरी है अभी, तो मुझे बताना है, और 3 दिया, मतलब मुझे बताना है 3 महीने बाद कौन सा मंथ आएगा। तो पहला फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, तो हमें अप्रैल रिटर्न करना है। तो जैसे 5 9 था, तो अभी 5th मंथ है, 9 महीने बाद कौन सा महीना आ जाएगा, तो 5 + 9 कर देंगे, 14 हो जाएगा। पर 14 अगले साल का मंथ है, तो अगले साल 14th मंथ होने का मतलब है कि अगले साल का पहला मंथ 13 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, अगले साल का दूसरा मंथ 14 से, मतलब 14 का मतलब है अगले साल का दूसरा मंथ। तो हमें 14 नहीं रिटर्न करके 2 रिटर्न करने की, दूसरे मंथ होगा अगले साल का। तो बस जैसे 12 12 था, तो 12 12, तो अगले मतलब 12 महीने बाद 24th मंथ हो जाएगा। पर मैंने बोला 13 को फर्स्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, 14 को सेकंड से, तो 24th को 12 से रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब दिसंबर आ जाएगा, 12वां महीना आ जाएगा। यहाँ पे 12 आउटपुट करा दिया। तो कोड में क्या, एक्स और वाई इनपुट ले लिया, उसको वाई मंथ आगे ले गए, एक्स को वाई मंथ, मतलब अभी 5 को 9 महीने आगे ले गए। तो और अगर वो अगले साल में पहुंच गए, इसका मतलब है अगले साल आ गए हम, मतलब नेक्स्ट ईयर आ गया है हमारा, तो उसको 12 से कम कर दिया, 13 को 1 कर दिया, 14 को 2 कर दिया, और वो एक्स आउटपुट करा दिया। तो इससे ये भी हो गया। तो इन शॉर्ट की सारे क्वेश्चन हो गए, बस ये एफ वाला प्रॉब्लम काफी डिफिकल्ट था, कम लोगों से हुआ, ये नहीं हो पाया। बाकी ठीक है, थैंक यू।